Good morning, girls. Myself, Sandeep Kumar Reddy from Ingenious Competitive Training Academy. Today, I'll be discussing regarding whatever the normalization procedure, how exactly it has been discussed. It's already various YouTube channels. I think you might have gone through that. As you can see, the thumbnail that is 155 out of 150 marks. Is it possible? Yes, it is possible when the normalization has been done. How exactly these many marks will be given? We have only for 150 marks, but the marks goes up to 155. How this is? Guess who gets this mark? Let us see how exactly these marks are. Previously, we have gone through one slide that is in 2019 the maximum score was how much? That was 146. So the intelligent candidate has got 146 marks and the cutoff was 110. Now you guys tell me, out of 150 marks she has got 156. She is the topper, and there are various students who has got 145, 144, 143 like that. So it means though the paper was little bit tough or easy, whatever the situations, the intelligent candidate, whoever is there, for them the paper is not tough. Always it is easy because they have prepared well and they are smart. This time, whatever the irrespective of the paper, there may be few students. It's not like I'm not telling every student. It's like 1% student or something like 2%. It is that matters. So those students will be near about 140 above. If their shift, whatever the shift has come, if the normalization, whatever the marks has been given, whatever the marks they have, that candidate she has got. So let us see how exactly that marks that goes up to 155 and many more, like 155 and more only. So more than 150 it crosses. If she gets more than 145 marks, they were right. Here what exactly the formula? We knew that in the case of SSC CGL, we knew that combined graduate level. You can see small analysis how exactly the difference you have. This marks is for 200 marks. One candidate on 4th of June, he has got 117 marks, but after the normalization the gap is 156. So what exactly the difference is? 39. So you can see again on the 10th you can directly see 116.89 marks have got without normalization. After normalization that candidate got 158. So the difference is what? You can see the slab difference. 41 slab is there, 39 is there, 17 is there, 20 is there. Now that depends how smart students, जो भी स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, जो लोग बैठे हैं एग्ज़ाम के अंदर, अगर उनकी पेपर उनके लिए लगता है कि बहुत ही मुश्किल है, अगर उन्हीं पेपर में अगर स्मार्ट स्टूडेंट का मार्क्स अगर ज़्यादा आ चुका है, देन स्लैब कैसा बनता है ये काफ़ी बड़ा खेल है जो किसी को बहुत ही कम समझ में आता है। और इस पे आप लोग गौर मत करिए किस पे कितना मार्क्स आ रहा है, क्या जा रहा है। पर अगर आपको लग रहा है कि सर मेरा 100 से ऊपर ही अगर अटेम्प्ट अगर ठीक ठाक गया है तो आप लोग तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये सब आपके लिए कन्फ्यूजन फैक्टर्स है। ये जो भी अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत, आपको ये मार्क्स अगर ऐड हो गया तो आपको काम आ जाएगा इंटरव्यू में, अगर ये ऐड नहीं हुआ तो आपको दुगना मेहनत करनी पड़ेगी किस में? इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि जो किस्मत वाले ले लिए ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन की वजह से, अब आपको मेहनत करनी है किस पे? इंटरव्यू पे। सो प्लीज़ फोकस ऑन इंटरव्यू, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं ऐसा हो सकता है क्या? देयर इज़ ए चांस, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दिस इज़ द स्लाइड, आप देखिए 2018 का ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो टायर 1 एग्ज़ाम होता है, उस टायर 1 के अंदर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 मार्क्स के होते हैं। अवेयरनेस दैट इज़ जनरल नॉलेज जो होता है वो 24 मार्क्स, सॉरी दैट इज़ 50 मार्क्स के होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश भी 50 मार्क के होते हैं। नाउ यू सी ही हैज़ गॉट इन इंटेलिजेंस दैट इज़ 47.5, अवेयरनेस 24 एंड 48 एंड 40। पूरा मिला के रा स्कोर कितना बना? 159.5। अब जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था, 40 अगर ऐड कर देंगे तो क्या होगा? तो स्लैब तो ऐड करना पड़ेगा ना उसको।
हर स्टूडेंट को इतना ही ऐड करना पड़ता है। तब स्कोर कितना बना 203.75, यानी 200 मार्क में उस स्टूडेंट को कितना मार्क्स मिला। बल्कि ये गधा नहीं है, ये स्मार्ट स्टूडेंट है और इसको नॉर्मलाइजेशन होके कितना बना 203। आपको क्या लगता है ये 155 होने वाला है या 160 होने वाला है? ये कोई नहीं बता सकते हैं। जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा आप खुद ही तय करो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इस बार। ये सब कौन मॉनिटर कर रहे हैं? दिस आर ऑल बीइंग मॉनिटर्ड बाय बोर्ड। जो पैनल बैठता है इंटरव्यूअर, और उनको बताया जाएगा कि ये नॉर्मलाइजेशन एक इस बार ऐसा हुआ है, तो इनको अच्छी तरह से आप लोग स्क्रूटिनाइज़ करो, फ़िल्टर करो और इनको अलग अलग टेस्ट कंडक्ट करो। टेस्ट यानी वो अपनी मनमानी चलता है, वहाँ पे आप लोगों से कोई भी एसआरटी टेस्ट कुछ भी आपके साथ किया जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी अलर्ट रहना पड़ता है। अगर वहाँ पे जाएंगे कुछ भी कर देगा, जैसे कि फ़िल्टर करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, उनको सब पता है क्या क्या करना पड़ता है, पर आपको हर तरफ से आपको स्मार्ट रहना पड़ता है। अगर इंटरव्यू के अंदर ही आपसे कुछ बोला जाए, ओके इसका वाटर इमेज बताओ, इसका मिरर इमेज बताओ, जो भी बताओ आपको आंसर देना पड़ेगा। तो आपको इतनी स्मार्ट होना ज़रूरी है। अगर आपसे कोई भी सवाल अगर पूछा जाए तो आपको बताना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो ये आप नज़र रखते हुए आप ये इसी बात से खुशी मत हो जाइए, आप रेस्ट करने की कोशिश ना करिए। आपको आगे दिल्ली बहुत दूर है और ये नॉर्मलाइजेशन अगर आपके साथ अगर अच्छा हो जाता है तो ठीक है, अगर आपके साथ अगर खिलवाड़ हो जाता है तो आप बहुत पछताओगे। सो मेरा मेन मकसद ये बनाने का यही है, आप लोगों को जगाने का, यानी आप लोग रेस्ट होके सो जाओ। बस मेरा मार्क्स आ गया, अब मैं इंटरव्यू में अंग्रेजी आई कैन स्पीक वेरी वेल, आई कैन रॉक वेरी वेल। नेगेटिव, यू विल बी किक्ड आउट ऑफ दैट इंटरव्यू इफ़ यू आर नॉट गुड एंड मार्क्स एज वेल एज कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होना ज़रूरी होता है। इतना भी स्मार्ट नो बडी कैन एक्सपेक्ट वॉट एग्जैक्टली हैपन्स ओवर देयर। You have to be smart enough in everything. You have to be alacrity, should maintain that alacrity, that enthusiasm you should have that. So this is the formula what exactly the normalization method जो find out करने के लिए यूज़ किया जाता है, बल्कि this is what exactly they do. You can directly go through, अगर आपको देखना है आप देख सकते हैं इनमें क्या क्या दिया गया है, पर जिनको मार्क्स मिलेगा वो किस हिसाब से मिलेगा आप एक बार इसको आप गो थ्रू करिए, जिससे आपको अगर समझ में आता है स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करने का, ये आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये अगर मान लो 155 मार्क आ गए ग्रेड जो बेस्ट स्टूडेंट है, अब जो कट ऑफ कितना जाएगी, जैसे कि स्लैब होता है, हम जानते हैं प्रीवियस ईयर भी 145 से लेके 110 वाज द स्लैब। अब वो जो 45 से लेके 110 यानी 35 मार्क्स का जो स्लैब था, दैट वाज एग्जिस्ट प्रीवियस ईयर। आपको क्या लगता है इस बार भी ये स्लैब नहीं रहेगा? इस बार भी रहेगा, और वो हो सकता है 40 मार्क की स्लैब हो। अब स्लैब अगर है तो क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए जाने से पहले? इंटरव्यू मार्क्स बी कंसिडर फॉर मैक्सिमम परसेंटेज। अब मनमानी चलेगी किसकी? बोर्ड पैनल की। अब वो डिसाइड करेंगे, अगर इंटरव्यू में जो भी मार्क्स परसेंटेज है उनका अपनी मर्जी चलेगा कितना मार्क्स परसेंटेज लेनी है, क्योंकि उनको हर स्टेट से भी लेनी है और दे वांट टू सी द स्मार्ट कैंडिडेट्स, और इंटरव्यू विल बी मॉडिफाइड टू डिफ़िकल्ट लेवल। जो भी इंटरव्यू जो प्रोसीजर था उस प्रोसीजर को उन्होंने जो भी अब अडॉप्ट किया गया है, दे यूज़ टू टेक लिटिल बिट पॉजिटिव मेजर्स, जिससे वो अच्छी तरह से फ़िल्टर कर सकें। और आपको याद करने वाली चीज़ ये है कि जो भी इंटरव्यू होगा वो इस बार मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल ही होगा। आपसे अलग अलग सवाल पूछा जाएगा, आपसे मतलब थोड़ा सा टाइम लगा के मतलब फ़िल्टर किया जाएगा, फोकस रहेगा। दे मे अडॉप्ट वेरियस मेथड्स टू फिल्टर एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया। दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली दे वांट। हर जगह से उनको स्टूडेंट्स चाहिए, यानी केरल से ले लिया या बिहार से ले लिया या मध्य प्रदेश से ले लिया या कोई डिफेंस एकेडमी का ले लिया, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको हर जगह से हर इंसान को सेटिस्फाई करनी है, उनको सही उनकी न्याय करनी है। कहने का मतलब आपको प्रिपेयर अच्छी तरह से करनी है। जो मेहनत करेगा
अभी आपको पता चल गया हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, अभी से जागिए, जितना हो सकता है उतना आप इंटरव्यू क्वेश्चंस जो भी पूछे जवाब देने की हिम्मत रखिए। यानी आप वहाँ लास्ट में जाके 1 साल की अगला 2021 वाली आएगा, पहले ये तो ख़त्म होने दो, 2021 वाले की तो बाद की बात है। गवर्नमेंट के पास भी इतनी पॉजिटिव मेजर्स लेने की क्षमता होनी चाहिए, अभी इतनी जल्दी नहीं कर सकती है। हम मानते हैं कोविड चल रहा है, नर्स की रिक्वायरमेंट है, पर ये मतलब नहीं कि आप लोग अपना ग्रांटेड ले लो। मैं खुद एसएससी सीजीएल का 2018 का दिया हूँ और आज भी उसके लिए रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहा हूँ। 2 साल हो गया। मैं आपसे यही विनती करता हूँ, ज़्यादा हवा में ना उड़िए, थोड़ा सा मेहनत करिए अपनी करियर के प्रति। और जो भी मैं वीडियोस दे रहा हूँ, प्लीज़ आप एक बार गो थ्रू माय प्लेलिस्ट, आपको 1200 वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और हर वीडियो मैं आप लोगों के लिए नहीं बनाया, वो मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए जितना बेस्ट दे सकता हूँ उन गरीब लोगों के लिए मैं हेल्प कर रहा हूँ। और प्लीज़ आप लोग अपना इसमें झांकिए, ये नंबर बनाने के लिए नहीं, जस्ट मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो भी है आप प्लीज़ गो थ्रू जाइए। काफ़ी अच्छी कंटेंट आप इसके अंदर देखने को मिलेगा। प्लीज़ शेयर इट योर फ्रेंड्स, लेट द पुअर पीपल बी बेनिफिटेड। ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी इतनी अच्छी तरह से नहीं बताते हैं जितनी अच्छी तरह से मैंने बताया। आई वांट यू गाइस टू वेक अप एंड शेयर इट टू मैक्सिमम पीपल। सो लेट अस सी, यहाँ पे जो दिया गया है, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट ओनली। इट इज़ नॉट टू कन्फ्यूज द स्टूडेंट। आपको एक जगाने का एक टैक्टिक्स मैंने बता दिया और कुछ नहीं है। इट्स नॉट नथिंग एल्स। हु विल गेट मोर मार्क्स, किसको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा? जिसका क्वेश्चन पेपर टफ था और मैक्सिमम स्कोर जो है, जो इंटेलिजेंट कैंडिडेट जो होता है उनकी स्कोर अगर कम आ गया, मतलब उसमें ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है। अगर जो इंटेलिजेंट बंदा अगर अच्छा को स्कोर आ गया तो ऑब्वियसली कट ऑफ जो है ज़्यादा स्लैब नहीं रहेगा। स्लैब ज़्यादा कब रहता है? जितना भी बड़ा इंटेलिजेंट इंसान उसमें कम स्कोर आया और उसका जो टफ पेपर अगर था तो ऑब्वियसली उसका जो स्लैब रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। जैसे कि मैंने पहला वाले में दिखाया था जिसमें 36 था, किसी में 40 था, तो वो स्लैब की यही फ़र्क है। वहाँ पे इंटेलिजेंट स्टूडेंट को भी कम मार्क्स आया और पेपर वाज वेरी टफ, तब आपको स्लैब अपने आप बढ़ जाएगा। यह आपको याद रखनी है। आपकी पेपर किस हिसाब से आया था, अगर ज़्यादा टफ आया था 11 तारीख को सुबह का शिफ्ट, देन इंटेलिजेंट जो इंसान है जो भी है उसका अगर मार्क्स कम है तो ऑब्वियसली आपका स्लैब ज़्यादा जाएगा। पर ये ज़रूरी नहीं कि उस टाइम पे इंटेलिजेंट जो बंदा है अगर उसका 145 आ गया तो आपका तो ख़त्म है। वो तो 155 की जगह 160-170 भी हो सकता है। आपने देखा है? नहीं देखा है ना? आपको दिख जाएगा कुछ दिन के बाद। अगला ये वाइस वर्सा होता है। अगर इजी पेपर है, मैक्सिमम स्कोर बाय इंटेलिजेंट भी ज़्यादा है, तो आपका स्लैब क्या हो जाएगा? अपने आप कम हो जाएगा। यही आपको याद रखने वाली चीज़। जैसे कि लोगों को लगता है वेस्ट बंगाल में इस हिसाब से हुआ है सर, तो ये हो सकता है क्या? ज़रूर हो सकता है। वहाँ पे इजी पेपर था अगर लग रहा है कि, और वहाँ पे जो मैक्सिमम स्कोर जो लेके आया था, अगर उसका ज़्यादा स्कोर अगर हो गया उसको तो मतलब ऑब्वियसली कम करेगा ही। जो भी होगा मतलब कम नहीं करेगा, मतलब जो भी स्लैब है वो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। दैट इज़ व्हाट द इंटेंशन इज़। और किसको चांस है ग्रैब करने की, इस नौकरी को पाने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस किसको है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इंडिविजुअल विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, मेरा हिंदी बहुत अच्छा है, मैं पैदाइशी हिंदी में हुआ हूँ, तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि आपको अंग्रेज़ी भी बोलना पड़ेगा। आप हर चीज़ अंग्रेज़ी में हिंदी में बात करोगे तो अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आता, आप लुल हो, फिर तो आप 4 साल की ट्रेनिंग करनी है। वहाँ पे जो भी नॉर्थ इंडियंस है, जो भी स्मार्ट है, जो भी साउथ इंडियन केरलाइट्स है, जो भी स्मार्ट है, उनके साथ आप हिंदी मीडियम पढ़ के आए हो तो आप लोगों के लिए दिक्कत होगा ही। थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी सीखना पड़ेगा। यू कांट टेक इट ग्रांटेड। अब बात आती है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। जैसे कि आप जानते हैं कुछ नॉर्थ इंडियंस बहुत ही स्मार्ट है, दे आर वेरी, उनकी परवरिश काफ़ी अच्छी रहा और काफ़ी एडवांस है, दे आर स्मार्ट इनफ। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर है देन दे कैन ग्रैब ईजीली। अब बात आती है द वन विद गुड नॉलेज ऑफ डिफेंस एंड बायो। वी न्यू दैट व्हाट आर द बायो, इसका अलग ही अंदाज़ है। जिस नौकरी के लिए आप जा रहे हो, आप नर्स के लिए जा रहे हैं, आपकी पकड़ होनी ज़रूरी है।
रेस्पेक्टिव फील्ड में, जैसे कि बायो कंसर्निंग कोई भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। जो एग्ज़ाम में आए थे, जिन्होंने रेफ़र नहीं किया उनका तो ख़त्म है, क्योंकि जो रेफ़र नहीं करते हैं पेपर को, तो वही सवाल अगर कल पूछेंगे इंटरव्यू के अंदर, आपने बता नहीं पाया तो आप तो पीछे चले जाओगे। अब बात आती है डिफेंस की नॉलेज, क्या रहना ज़रूरी है? डिफेंस की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप डिफेंस में जा रहे हो, आपको ये नहीं पता कि अभी करमबीर सिंह कौन है, बिपिन रावत कौन है, तो आपके लिए बहुत ही मार पड़ेगा। तो बहुत ही याद रखिएगा ये सब चीज़ें जो भी अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इंटरव्यू टिप्स मिल जाएगा, रेस्पेक्टिव सीनियर ऑफिसर जो भी है उनका डिटेल्स भी मिल जाएगा, आप लोग गौर करिए। नेक्स्ट, द वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट फॉर इंटरव्यू। यहाँ पे बात आती है इंटरव्यू की। जिस इंसान ने, जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए तैयार किया है और एकदम रेडी है, कोई भी सवाल अगर आपसे पूछता है, बताइए व्हाट आर द एयरक्राफ्ट कैरियर्स वी हैव, बताइए व्हाट आर द न्यूक्लियर सबमरीन्स वी हैव, एनीथिंग आपसे पूछा जाएगा। लेकिन आपसे कुछ भी पूछ सकता है, व्हाट इज़ द ऑपरेशन सुकून, ऑपरेशन लेबनन का क्या था, वो एवरीथिंग आपको पता होना ज़रूरी है। आप लोग प्लीज़ गौर करिए इस प्लेलिस्ट में, आपको एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो कर लो, नहीं तो मत करो, चेक करो एक बार, उसके बाद ही करना। अगर आपको लगता है कि आगे आगे मुझे अच्छी वीडियोस चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब बात आती है अगला, हु इज़ फिट एंड फिडल इन ऑल एस्पेक्ट्स। ये एक चीज़ है जो कि वो हेल्दी अगर है, ओबेसिनिक नहीं है, या कोई प्रॉब्लम्स अगर है ही नहीं, उनको अगर कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम्स अगर है ही नहीं, देन दे आर ओके। ऑब्वियसली ये स्लैब तो ज़्यादा रहेगा सिलेक्शंस के लिए जब आप मेडिकल के लिए जाओगे। तो ये आपको याद करने वाली चीज़ है, जो भी फिट एंड फिडल है और उनको लगता है कि मेरा आईसाइट नहीं है, मेरा डेंटल पॉइंट सही है, मेरा सब कुछ सही है, उन लोगों के लिए किस्मत तो है ही। फर्दर विल बी सेंड फॉर द मेडिकल। सबसे पहले क्या होगा, 10 लोगों को लिया जाएगा, अगर उनको 5 लोग चाहिए, 10 लोगों को दे लेंगे, उनकी मेडिकल करेंगे। अब बात आती है 5 लोगों की सिलेक्शन। अब उस बाकी 5 को क्या करेंगे, मेरिट बोल के निकाल देंगे। कहने का मतलब उनका 1:2 रेशो में लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो 1:2 में अगर लेंगे तो भी दैट इज़ मोर एनफ फॉर देम। अगर उससे कम लेंगे तो फिर अगेन प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अगर मेडिकली अनफिट कैंडिडेट्स अगर ज़्यादा है, या ऑलरेडी पहले स्क्रूटिनाइज़ किया जाता है, एक बार देखने से पता चल जाता है कि कौन लड़की कितनी ओबेसिनिक है, क्या है, वो ऐसे ही देख के सेलेक्ट कर सकती है। अगर ज़्यादा ओबेसिनिक है तो उसको तो लेंगे ही नहीं, और हाइट वगैरह नहीं है तो पहले से वो रिजेक्ट कर देंगे। डिपेंड करता है, अगर आप बॉर्डर पे हो या आपकी उम्र अगर 18 ईयर्स से आप बॉर्डर पे हो, 152 एग्जैक्टली हो, देन बिकॉज आपका हाइट बढ़ जाएगी तो आपको एक्सेप्ट कर देंगे। पर उससे पहले आपको थोड़ा सा तैयारी करके जानी चाहिए। यू हैव टू डू सम फिजिकल एक्टिविटीज़, आप अपना हाइट बढ़ाने की कोशिश करिए, टेक सम सप्लीमेंट्स। अब बात आती है मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि इंडिविजुअल फिट इन इंटरव्यू विल बी सेंट फॉर फर्दर मेडिकल एग्जामिनेशन। फिट कैंडिडेट्स विदाउट साइट ओबेसिटी नॉकनीस अदर्स मे बी बेनिफिटेड एंड विल बी स्क्रूटनाइज्ड विद द अटमोस्ट केयर बी टेकन। अब यहाँ पे जो भी 1:2 रेशियो रहेगा, और उनकी मेडिकल तो अटमोस्ट केयर तो होगा ही, क्योंकि दे डोंट वांट डिफेक्टिव पीसेस। जो भी होगा वहाँ पे स्क्रूटनाइज किया जाएगा। अगर आप उनको लगे कि दे आर फिट एंड फाइन, आप लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, आपकी मेरिट अनाउंस किया जाएगा। अब बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कुछ लोग होते हैं जिनकी डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं रहता। अब अगर रेडी नहीं हो तो पहले कर लो, नहीं तो आपको भारी पड़ेगा। आप हर्ड कि कुछ लोगों की डॉक्यूमेंट्स कहीं फंसा हुआ है, प्लीज़ आप पहले बोल के रखिएगा, मुझे ऐसा हो सकता है, मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको कॉलेजेस में कन्विंस करके आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेजेस जो भी होते हैं 4 साल के लिए आपके एडमिशन लेता है। अब आप सेकंड ईयर में चले जा रहे हो, 3rd एंड 4th ईयर जो है उस कॉलेज के अंदर वैकेंट हो सकता है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, 3rd एंड 4th ईयर का भी पेमेंट आपको करनी है अगर आपको गवर्नमेंट नौकरी पानी है, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे फैकल्टी हायर करना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, आपको बाकी 2-3 साल, अगर आप पहले ही साल में सिलेक्शन हो गई, अब तीसरी, दूसरी, चौथी जो साल होता है उनका पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा।
अब बात आती है उसमें कितना पेमेंट करनी है, वो क्या है, स्लैब है, रेस्पेक्टिव कॉलेज का होता है, अपना पूरा पैसा भर के वापस आना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेगा। यू हैव टू पे फुल अमाउंट इफ़ यू वांट टू जॉइन इन डिफेंस फोर्सेस। सो प्लीज़ रिमेंबर, जो भी नौकरी, जैसे कि हुएवर इज़ ऑलरेडी परसुइंग ग्रेजुएशन या बीटेक कोई भी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उनको अपना पूरा पेमेंट करना ही पड़ेगा कॉलेजेस को, नहीं तो आप उधर भी लटक जाओगे, इधर भी लटक जाओगे। सो लेट मी टेल यू, यू हैव टू पे द फुल अमाउंट। पापा को बोलिए, पापा अगर मेरा सिलेक्शन अगर हो जाता है तो उनको बोलिए कितना पैसा इनको देना है, वो पैसा रेडी रखिएगा, चाहे वो 2 लाख हो चाहे 3 लाख हो, आपको देना ही पड़ेगा। दैट इज़ एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉलेज लेवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गर्ल्स, प्लीज़ अलर्ट योर पेरेंट्स। फॉर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस आप कॉल कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे, क्योंकि काफ़ी लड़कियां, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई रिगार्डिंग दिस, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, यानी आप लोगों को फूल बनाने के लिए नहीं। आई वॉन्ट यू गाइज टू वेक अप नाउ ऑनवर्ड्स। दिस इज़ माई मोबाइल नंबर। आपको लगता है कि सर वी वांट 20,000 PDF of GK and GS, you can collect from me for a free of cost. Thank you girls, have a good day, have a great life.